السلام علیکم ناظرین، عائشہ جہاں زیب حاضر ہے خبرناک کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون سے شاہین خالد صاحب۔ ویلکم ٹو دی شو۔ تھینک یو۔ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں ڈمی میوزیم سے آئے مولا بخش چانڈیو۔ بہت مہربانی، شکریہ۔ میرا تو اپنا پروگرام ہے، میرا تو انٹروڈکشن کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آج آپ سوال مجھ سے پوچھو گے اس سے پہلے اگر اجازت دو تو میں ایک سوال پوچھ لوں؟ ایک پوچھ لوں؟ آگے سے ہاں نہ کرو نا، ادھر ادھر کیا دیکھتی ہو، اپنے فیصلے خود کیا کرو۔ ایک سوال کروں ان سے؟ جی کیجئے۔ تو یہ ان کو شاہد کو میرے پاس کیوں بٹھایا ہے؟ تو کہاں بٹھاتی؟ تو انہوں نے سنا نہیں ہے تو شاہد ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر یہاں پر صوفے پر بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں؟ میرے مہمان ہیں۔ آپ کے مہمان ہیں، لیکن آپ کا مہمان سارے وہ ہوتے ہیں جو جیسے جن کو صحیح ذوالفقار علی بھٹو کے جیسے پارٹی ان کو نہیں نظر آئی، یعنی انہوں نے باسن پارٹی پیپل پارٹی کے علاوہ ان کو بلایا۔ شاہین صاحب، بھٹو صاحب جب سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنے تو آپ نے فوج سے ریزائن کر دیا۔ یہ جمہوریت سے محبت تھی یا مارشل لا کے تصور پہ اعتراض؟ دونوں؟ جی، اس لیے کیسے؟ ایسے ہے کہ جب ہم اوتھ لی، جب میں آفیسر بنا 1971 میں، تو پرائمیرلی ایک ہی آبجیکٹ تھا ذہن میں، وہ یہ تھی کہ کشمیر کی آزادی کے لیے دشمن سے ہم نے لڑائی لڑنی ہے۔ اس کے علاوہ میرا کوئی اور مقصد نہیں تھا۔ اب 1977 نومبر میں جب مارشل لا لگا تو انفارچونیٹلی ایسی ایک سچویشن تھی جہاں پہ ہمیں سول راؤڈی کراؤڈ کے اوپر آرڈر کرنے کے لیے، فائر کرنے کے لیے آرڈر کیا گیا۔ تو وی ور 4 آفیسرز، بریگیڈیئر نیاز تھے، بریگیڈیئر اشتیاق، بریگیڈیئر تاج، اور میں بریگیڈیئر نیاز کا سٹاف کیپٹن تھا G3، اور وی ہیڈ ٹو ریزائن آر کمیشن انڈر پروٹیسٹ کہ یہ ڈیوٹی جو ہے اس کے لیے ہم نے فوج جوائن نہیں کی تھی۔ واہ، تو پھر تو آپ کو بھٹو صاحب کا اور عاشق ہو جانا چاہیے تھا، اختلاف کیوں کیا ہے؟ اختلاف اس لیے کہ انہوں نے مارشل لا لگائی۔ وہ پہلے سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے پاکستان کی ہسٹری میں۔ وہ تو ٹھیک ہے، آپ یہاں پر ہمیں کیا معاشرتی علوم پڑھانے کے لیے آئے؟ پہلے سول بھٹو صاحب کو مجھ سے زیادہ تو نہیں جانتے آپ۔ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے فوج سے ریزائن کیا تھا تو علی بھٹو صاحب کو آپ کو جوائن کرنا چاہیے تھا پیپلز پارٹی۔ چانڈیو صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ ان کو بالکل بہتر جانتے ہیں، پر بہتر جاننے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ ان سے ڈس ایگری کر رہے ہیں۔ میں ان سے ان کے کنڈکٹ کے اوپر ڈس ایگریمنٹ کر رہا ہوں، اور میرے جاننے کے لیے یہ کافی تھا، میں اس وقت فوجی تھا، میرے جاننے کے لیے یہ کافی تھا کہ فوج کی ایک سرٹن ڈیوٹیز ہیں، ایک چارٹر ہے، مجھے ان کے درمیان رہ کر کام کرنا۔ شاہین صاحب، یہ صادق سنجرانی کے جانے کی باتیں ہو رہی ہیں؟ جی، باتیں ہم نے بھی سنی ہیں۔ تو کیا حقیقت ہے اس میں؟ اس میں حقیقت دیکھیے، بات یہ ہے کہ جس طرح وہ آئے تھے اسی طرح وہ چلے بھی جا سکتے ہیں، آئے بھی ایسے ہی تھے وہ۔ چانڈیو صاحب، بلاول کہتے ہیں اگر بابا کہہ دیں تو ایک دن میں حکومت گر جائے گی، ایسی کیا گدڑ سنگھی آ گئی آپ کے پاس؟ نہیں، یہ تھوڑی سی زیادتی ہو گئی ہے۔ اچھا، یہ غلط کہہ رہے ہیں، میں اس کی مذمت کرتا ہوں، کیونکہ ایک دن کی ضرورت نہیں، یہ تو 1 گھنٹے کا کام ہے۔ 1 گھنٹے کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ صرف چار کاغذ، شاہد صاحب صرف 4 کاغذ آپ کو چاہیے، ان پر لکھنا ہے I am no more with this government, I am no more with this government, I am no more with this government, I am no more with this government. Thank you. تو اچھا، آپ 39 سال سے امریکہ میں ہیں، لیکن کبھی شہریت نہیں لیا آپ نے؟ مجھے یہ کانسیپٹ ہی میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کسی اور ملک کے فلیگ کے انڈر اوتھ لوں اور یہ اپنے گرین پاسپورٹ کو میں ریجیکٹ کروں، یہ مجھے قبول نہیں تھا، اس لیے میں نے نہیں لی۔ واہ، تو سر آپ کے بچوں کے پاس بھی کوئی شہریت نہیں؟ نہیں، میرے بچوں کے پاس ہے شہریت۔ میرے بچے جو ہیں وہاں پڑھیں، وہاں پڑھ رہے ہیں ابھی بھی، وہاں دے آر میرڈ دیر، ان کے پاس شہریت ہے، میرے پاس نہیں۔ تو آپ ادھر آؤ نا، سندھ میں پیپل پارٹی کی شہریت دلوا دیتے ہیں آپ کو۔ چانڈیو صاحب، سندھ میں آپ انوائٹ کریں، ہم آئیں گے، ضرور آئیں گے انشاءاللہ، آپ انوائٹ کریے۔ دیکھیے، یعنی موڈ بن رہا ہے، نواز شریف کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے؟ نہیں، نواز شریف تو ہمارے دل میں ایسا ہے کہ کوئی ایسا راستہ، کوئی ایسی سوچ کسی مسلم لیگی میں نہیں ہے کہ جو نواز شریف کو چھوڑ سکے۔ یعنی آپ کے دل میں صرف جیل جانے کا راستہ ہے؟ کچھ کہیں بھی جائیں گے ان کے لیے۔ چانڈیو صاحب، جیل تو زرداری صاحب جا رہے ہیں۔ شب بول، شکل اچھی نہ ہو تو بات اچھی کرنی چاہیے۔ وہ جے آئی ٹی کی رپورٹ نہیں پڑھی سر آپ نے؟ تو جے آئی ٹیاں بڑی دیکھی ہیں، وہ کون سی ٹرانسپارنٹ چیز ہوتی ہے؟ سر، سندھ بینک، سمٹ بینک اور
ओमनी ग्रुप सर, आप ही क्या सासा जात की ट्रांजैक्शन में लगे रहे हैं? सिद्ध के पीछे तो देखे, बाबा मोहम्मद बिन कासिम के जमाने से सिद्ध के साथ यही मसले चलते हैं। अच्छा। वाह, ओ आए नहीं गर्मियां च पैसे जोड़ के सर्दियां च कोट लैन वाले। तेरा सर्दियां च टिंड कराने वाले आ, ओए अब्बे नाल बह के तराण वाले आ। ओ मेरा अब्बा नहीं हैगा ओ भाई। कोई नहीं, सिर ते इको जिहा ने। कोई गल नहीं ਵੀਰੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਕਿਹੜਾ ਦੇਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। क्या ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਦਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਸਿੱਧੀ ਯੂ ਟਰਨ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਚ ਵੱਜਣੀ ਹੈ। अबे बेवकूफो, गिराया तो उस चीज को जाता है जो पहले से किसी ऊंची जगह पर हो। हाँ? तो जो चीज पहले से ही गिरी पड़ी है उसे कैसे गिराओगे? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਇੱਥੋਂ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। काका हुण जदों साह फसे ना ढोलकी तेज कर देनी। अच्छा शाहीन साहब, अगर पीपल्स पार्टी सड़कों पर निकली तो क्या नून लीग साथ देगी? नून लीग ने इसलिए सड़कां नहीं बनाईयां भी उत्ते पीपल पार्टी दौड़दी रहे। जब वक्त आएगा देखेंगे कि हमारी क़यादत, हमारी पार्टी जो है क्या मुनासिब समझती है। अगर मुनासिब समझा तो आएंगे, अगर ना मुनासिब समझा तो नहीं आएंगे। अच्छा, वैसे शाहीन साहब, कुछ ट्रस्ट डेफिसिट कम हुआ है दोनों पार्टीज के दरमियान? लगता तो है ऐसा। सर, किस सतह पे? सतह पुरतोफा पोठवार पर। ओह सर, मेरे कहने का मतलब है मियां नवाज शरीफ के दिल में कुछ ट्रस्ट डेफिसिट कम हुआ है कि नहीं? देखिए, सियासत जो है ये एक ग्रोइंग प्रोसेस है डेमोक्रेसी का। इसके अंदर मुख्तलिफ औकात पे मुख्तलिफ हालात होते हैं जी, और मुख्तलिफ डिसीजन दिए जाते हैं। अच्छा, वैसे हमने तो ये सुना है कि अंदर खाते आप लोग पीटीआई के साथ जनूबी पंजाब के मामले में एक हो रहे हैं। देखिए, मुस्लिम लीग अंदर खाते कुछ नहीं करती। अच्छा, मुस्लिम लीग की जो सियासत है बड़ी वाज़ेह है, अब तक आपने देख लिया इंशाल्लाह, इसलिए आप फिक्र मत करें, अंदर खाते कोई चीज़ डील वगैरह नहीं होगी। जो होगा अवाम उन्नास को पता चलेगा इंशाल्लाह। हुण ते खाता अंदर रहा ही कोई नहीं, सारे खाते नैब ने तो बाहर कढ़ा ले। बस यही बात है आयशा जी, दोनों का बराबर शिकंजा कसा गया तो आवाज आएगी नवाज जरदारी भाई भाई। के सड़कों से निकले भी ना दोवें ते आवाम को कोई उम्मीद ना रखन। क्यों? कल ही धुप्पे सड़न गए, थोड़ा पिस गई आवाम, हुण की लेना ना उन्होंने। बहुत अच्छे तख्ता उल्टान टुरे होए आ। ਇਹ ਜਿਹੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਵੋ ਨਾ, ਜੇਬ 'ਚ ਸਿਰ ਚਲਗੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਵੀਰੇ ਆ ਕੀ ਪਾਇਆ ਈ? ਗਰੀਬ ਦਾ ਪੱਠਾ। ओहो, कौन साहब है वो? ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਈ ਖਿੱਚੋ ਤੇ ਚੱਲਦਾ। यार अपनी बकवास बंद करो यार। ਇਹਦੀ ਟਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਖਿੱਚ ਦਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਹੀ ਹੈ। बीरा जी, आप मेरे साथ बैठे हैं यार। ਰਹਿਣ ਤੇ ਜੈਂਦਾ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹਵਾ ਘੱਟ ਹੋਣੀ, ਮੁਗਲਜ਼ਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ। शाहीन साहब, इमरान खान ने अपनी फंड रेजिंग आपके होटल से शुरू की जी, लेकिन आप पीटीआई से बहुत दूर रहे। मैं पीटीआई से इसलिए दूर रहा, देखिए कि सोशल वर्क और सियासत दो बिल्कुल 180 डिग्री मुख्तलिफ ये फैक्टर्स हैं। और उस वक्त मियाँ साहब, जो इमरान खान साहब थे, वो सोशल वर्कर थे, वो हॉस्पिटल के लिए पैसे कलेक्ट कर रहे थे, उसमें हमने उनकी खूब मदद की, एक बड़ा अच्छा कॉज था। लेकिन जो ही उन्होंने सियासत तब पीटीआई अनाउंस की, उस वक्त हमने उनसे फासला कर लिया। जरदारी साहब अगर जेल गए तो क्या आप सड़कों पर निकलेंगे? खुदा न करे कभी ऐसा हो। पहले तो वो जुर्रत कोई कर ही नहीं सकता आवामी लीडर के साथ। ओके। ठीक, खुदा न खास्ता इन केस हो गया। बड़ी जिम्मेवारी से आपको बता रहा हूँ, कराची से लेकर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से लेकर सिंध तक और बलूचिस्तान तक कोई सड़क ऐसी नहीं होगी। पहिया जाम, हड़ताल, आग होगी, जलाओ गिराओ होगा, कारोबार ठप हो जाएगा, दुनिया परेशान हो जाएगी, जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। अगर ये समझते हो ऐसा होगा तो हम कभी नहीं करेंगे जी। हम आइन और कानून के दायरे में रहते हुए अपनी लड़ाई लड़ेंगे। पल्लू लटके रे मारो, पल्लू लटके, पल्लू लटके रे मारो, पल्लू लटके, जरा सा सीधो हो जो बाल मारो, पल्लू लटके। मैं हो गया सीधा। सर, आपके लिए नहीं, आपको नहीं कह रहा, उधर कह रहा हूँ। मैं सीधा हो गया ना, बहुत बुरा होगा, बता रहा हूँ। नहीं हुआ क्या है, जिन्ने तुसी टेढ़ो होए ना, थानू मैं भी सीधा करूं। साईं जी जी। साईं क्या है? मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई है। गलती? माफी दे दे साईं। अच्छा, आपसे हुई है ना, मुझसे तो नहीं हुई है कोई गलती। जी? मैंने कहा पता नहीं क्यों आ गई है यहाँ पर, क्या हुआ क्या है?
आप उसका मुद्दा तो सुने। मुद्दा तो सुनूं, मैं मिनिस्टर हूं ना, एट अ टाइम मुझे क्या पता है, मुझे तो शिकायत पहली बार आई है। साईं मुझसे एक नाकाबिले फरामोश गलती हो गई। ओ ऐसा क्या कर दिया बीबी आपने? साईं आप एक दफा माफ कर दें। क्या कह रही हो? एक छोटी सी गलती, फिर कह रही हो नाकाबिले फरामोश गलती। केड़ा गुल खिला बैठी हो सर? ਵੀਰੇ ਗਲਤੀ ਹੁਣ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਜਵਾਨੀ ਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਵੀਰੇ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕੋਈ ਖਜੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋੜਾ ਤੇਲ ਲਾ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਮਰੱਬਾ ਖਵਾਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਚ ਲੂਣ ਬਹੁਤਾ ਪਾਤਾ? ओहो क्या हुआ है बीबी आपसे? अब नहीं हुआ, ये साईं 20 साल पहले की बात है। 20 साल पुरानी बात मुझे कोई नहीं याद। बीबी तुम बात करो। सही मैं? हाँ तुम। सही? हाँ सही? हाँ सही एक बहुत बड़ी ना अपॉर्चुनिटी आने वाली है, मेरी किस्मत बदलने वाली है। सही अपॉर्चुनिटी? हाँ जी, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ओहो सही इस हांडी की वजह से ना मैं जमीन से आसमान पे जाने वाली हूँ। जमीन से आसमान? तूने इस हांडी में जिन कैद किया हुआ है। ओहो सही ये सब ना जरदारी साहब की वजह से होने वाला है, मुझे बस आपका थोड़ा सा तावन चाहिए। सही क्या पागलों वाली बात करती है? इस देश की जरदारी साहब का क्या ताल्लुक है? है ना सही है? क्या है? हाँ ना सही, जब जरदारी साहब जेल जाएंगे तो मैं उनके लिए हंडिया पका कर लेकर जाया करूंगी ना। फिर जब वो बाहर आएंगे, हुकूमत बनाएंगे, तो फिर उन्हीं लोगों को नवाजेंगे ना जो जेल में उनसे मिलने जाते थे। तेरे मुंह में घी वाली हांडी जी। अच्छा वैसे ये उसूल था जरदारी साहब का, अनडिक्लेयर्ड ही सही, कि जो जेल में मिलने जाया करते थे ना जरदारी साहब से, उन्हीं पे ट्रस्ट करते थे वो। और जो आयशा जी उनके साथ जेल में रहते थे उन पर तो फिर कितना ही ट्रस्ट करते होंगे। उनसे तो पंजाबी सीखी है, दाव पेच सीखे, वो खुद कहते हैं। और वही दाव पेच उन पर लगाए भी है। सही वो बड़ी बड़ी आंखों वाली, लंबी सुराहीदार गर्दन वाली। ये क्या कह रही है? वही जिसके गले में माला, जो खाली आंखों के साथ इधर उधर देखती, थिरकते पैरों के साथ। साईं पैर मैंने जिंदगी में नहीं देखे। साईं वो बुरी रंगत वाली। बुरी रंगत वाली? हाँ सही वो जिसके लंबे लंबे बाल, वो किधर गई साईं? किधर गई? साईं आपकी बात कर रही है। किसकी बात कर रही है? मैं तो ऐसी किसी को नहीं जानता। सही वो आपके लिए नहीं, जरदारी साहब के लिए थी ना। जरदारी साहब के लिए? पता नहीं किसकी बात कर रही हो? सही उसके बारे में तो मुझे बताए ना, मैं तो खुद चाहती हूँ कि उसके बालों में उंगलियां फिर उसको सहलाऊं। झूठ है वो बातें करते हैं लोगों को। बीबी वाजे करो ना, किसकी बात कर रही हो? बोल तो रही हूँ साईं, मेरा दिल चाहता है कि उसके बारे में मुझे कुछ पता चले, मैं उसको चारा डालूं। हाँ सही वो ऊँटनी जो जरदारी साहब को पिछले दिनों तोहफे में मिली, वो बताओ ना। सर आप क्यों इतने घबरा गए? किसी की ऊँटनी को डिस्कस करना तो अच्छी बात नहीं है जी? ये तो गैर खानदानी हरकत है। ग्रेट पीपल डिस्कस आइडियाज, कॉमन पीपल डिस्कस ऊँट एंड ऊँटनियाँ। ये बात करनी थी तुमने। तुम अपना दिमाग, अपनी जुबान को कंट्रोल में रखो और गेट आउट फ्रॉम हियर। और बीबी तुम जल्दी से अपनी बात बताओ, मैं और भी बहुत सारे काम आए। साईं मुझसे गलती हुई है। सर खुदा के लिए आप बता के बोला करें। क्या पागलों वाली बात कर रही हो यहाँ पर बैठी हुई तुम? ओहो बीबी बताओ ना तुमसे क्या गलती हुई, जल्दी बोलो। बोलो ना। फंस गया। सेंटर साहब तुसी गलती ना करना, हाथ मारन दी ना। बोलो बीबी। साईं मुझसे ये गलती हुई है साईं। ओ बीबी जल्दी बोलो, क्या मसला है तुम्हारा? साईं 20 साल पहले आपने मुझे मना किया था, इस निकम्मे से, इस निकट्टू से शादी मत करो। मैंने इससे शादी कर ली, मैं मोहब्बत की मारी शादी कर ली। अब ये काम नहीं करता साईं, मैं क्या करूं? 2018 हमसे जाते जाते एक और नगीना छीन कर ले गया, डॉक्टर सलीम अख्तर। ये क्या आदमी थे, बड़े नकाद, अदबी मौर्रख, अफसाना निगार, कम है ऐसे लोग। डॉक्टर सलीम अख्तर एक खामोश तबा लेकिन मिलनसार आदमी थे। ਵੀਰੇ ਡਾਕਟਰ ਸਲੀਮ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਐਨਕ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਈ ਚੁੱਪਚਾਪ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ।
बीरा जी खामोशी भी तो एक सरमाया है ना। हाँ ये सरमाया थोड़े को नहीं है भाई उर्दू जबान में डॉक्टर साहब की खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। कौन वाकिफ नहीं है उर्दू की मुख्तसर तरीन तारीख से। आयशा कमाल किताब है और इसके बेशुमार एडिशन शाया हो चुके हैं और ये उर्दू की बेस्ट सेलर बुक्स में इसका शुमार होता रहा है। भाई अगर कोई कारी मुख्तसर वक्त में उर्दू अदब से वाकिफ़ होना चाहे तो डॉक्टर सलीम अख्तर की इस किताब से बेहतर कोई किताब नहीं है। एडे भी थोड़े वाकिफ नहीं सीगे किथे वो माहिर उर्दू अदब किथे रेहड़ी ते ड्राई फ्रूट बेचने वाला। प्रोफेसर साहब एक किताब थोड़े को लभ सकती है? आयशा ऐसे लोगों को किताबें देखने का शौक होता है लेकिन पढ़ने की नौबत कम ही आती है। मैं इसे किताब दे भी दूं तो मुझे किताब वापस नहीं मिलेगी। ये किताब जब छपी थी छोटी सी थी और आजकल इसका एडिशन बड़ा ज़ख़ीम। डॉक्टर साहब मुसलसल इसमें इजाफा करते रहे। तो फिर मुख्तसर तरीन तारीख क्यों कहते अभी? भाई जब लिखी थी तब तो मुख्तसर तरीन थी, जैसे वो कह रहे हैं वो बाद में इजाफा करते रहे तो उनकी जहांगीर तरीन बन गई है। और भाई कोई साल ब साल उर्दू अदब का जायजा लेते रहे, वो भी चीज़ें उन्होंने शामिल कर दी। और असल बात यह है कि आपने तवील तारीखें देखी नहीं है, कई की जिल्दों में होती है तारीख। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਦਾ ਥੁੱਕ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਸੀਗਾ। क्या ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਰਕਾ ਥੱਲੀ ਦਾ ਕਿ ਨਾ ਜਹਲਾ ਨਾ ਪੱਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ओहो कौन सी ऐसी तारीख पढ़ बैठे हो बीरे? ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਦਾ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। अच्छा जी तारीख है फरिश्ता। हाँ, सही है। निकले ना हाथ से। फरिश्ते का तो मैंने वाकई कभी नहीं सुना। हाँ हाँ आयशा जी ये जो बीरा है ये तो बड़े किरम किताबी हैं। हाँ जी बड़ा किरम है साढ़े ते। अब पता नहीं है कि किरम का क्या मतलब होता है। किताबी कीड़ा कह रहे हैं आपको। मैं तेन कीड़ा लगना ये तेरे दिमाग च केड़ा कीड़ा जरा तेन टिकन नहीं दिंदा। अच्छा वैसे डॉक्टर साहब थे बड़े संजीदा आदमी। एक दफा मुलाकात का इत्तेफाक हुआ। आपका? हाँ मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि मेरा ख्याल है मेरे पित्ते में पथरी है। डॉक्टर सलीम अख्तर से? हाँ जी, तो इसका इलाज बताए तो कहने लगे मुझे नहीं पता। बात ही खत्म कर दी। वो अदब के डॉक्टर थे। मैं अदब व एहतराम से ही बात कर रहा था। सारी जिंदगी इसीलिए इनका इलाज नहीं हो सका। इन्होंने हमेशा अपना इलाज उससे पूछा जो ना करना जानता हो। हाय बाजी ये ते दसो डॉक्टर साहब कदन फोत हैं? 31 दिसंबर 2018। ते उन्हां दी उम्र कितनी आई? उनकी उम्र 84 साल थी लेकिन वो सेहतमंद आदमी थे। सॉरी डॉक्टर साहब ने बड़ी भरपूर जिंदगी गुजारी लेकिन आखिरी 8-10 साल वो अपने घर तक ही महदूद हो गए थे। तीन दी क्या वजह आई? वो घर तक महदूद क्यों रहे? ये उनकी शौरी कोशिश थी, वो खुद को महदूद कर लेना चाहते थे। अच्छा आयशा जी डॉक्टर साहब हमारे घर के करीब ही रहते थे। अच्छा और वैसे भी वो तन्हाई पसंद थे। हम असरों के उड़ जाने के बाद वो घर तक ही महदूद हो गए। कदी तफीक नहीं हुई इन्हों के डॉक्टर साहब ने मिलन चला जावे, उन्होंने कोई फ्रूट लै जावे, मठियाई लै जावे, पेंट कोट इंज पाया जिवें तो बड़ा कोई अदीब ही नहीं है। बल्कि मिलन भी उदों ही जाता सी जदों किधरे मठियाई खा रहे होंदे सन। ये तो वाकई इस कौम का अलमिया है। जब बड़े बड़े लोग जो खुद में एक अहद है हमारे दरमियान मौजूद होते हैं तो उन्हें कोई नहीं पूछता और जब वो उठ जाते हैं तो फिर हम उनकी तस्वीरें, पोस्टर और विजिल्स लेकर भागते हैं। कौकब साहब, डॉक्टर अनवर सज्जाद, रूही कुंजाही, शाकिर शुजाबादी बड़े बड़े लोग हैं जो वक्त की धूल में गुम होते जा रहे हैं। आयशा बात कर रही थी डॉक्टर सलीम अख्तर की, मुझे उनकी एक बात याद आ गई। किसी ने उनसे पूछा डॉक्टर साहब हम 21वीं सदी में कैसे दाखिल होंगे? कहने लगे मैं तो पुराने जूते पहन के दाखिल होऊंगा, आपको पता नहीं। भाई उनकी खुद नविश्त है निशाने जिगरे सोख्ता। क्या खूबसूरत किताब है, रूह ताज़ा हो जाती है पढ़कर। बीरे दा मतलब की है निशाने जिगरे कोफ्ता? कोफ्ता नहीं, निशाने जिगरे सोख्ता। अच्छा सोफ्ता। सोख्ता। सोख्ता। भाई गालिब से लिया है उन्होंने ये टाइटल। भावे जिथों भी लिया सानू तो दसो दा मतलब की है। बीरे इसका मतलब है मेरी मादूम जली हुई जिंदगी का निशान। हेपेटाइटिस सी टाइप ही है गल। बीरे जिगर तो निशान तो तद ही बनते है। ओहो भाई गालिब जिगर को एग्जिस्टेंस के मानों में लेते हैं, हयात के मायनों में।
गालिब ता सुखन दे जंगल दा बादशाह है, ओदा जी चाहे वो कवे। आयशा निशाने जिगरे सोख्ता को पढ़कर डॉक्टर साहब की सही तस्वीर सामने आती है और पता चलता है कि डॉक्टर साहब वैसे तो कम गो और जैसे कहा गया कि तन्हाई पसंद थे, लेकिन उनके अंदर एक शगुफ्तगी और शरीनी थी और अपनी ऐसी बातें उन्होंने लिखी हैं कि मुझे तो पढ़कर बेख्तियार हंसी आई। डॉक्टर साहब ने अपनी सर्विस का ज़्यादा दौरानिया गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में गुजारा और वो साइकिल पर कॉलेज आया करते थे। डॉक्टर साहब कहते हैं मुझे मालूम ही नहीं था कि साइकिल मुझसे कितनी मनसूब हो चुकी है। ये ज़ियाउल हक के दौरे हुकूमत का वाक़या है कि मुन्नू भाई ने एक कॉलम लिखा जिसमें कुछ अदीबों का जिक्र किया गया था जिनके साथ साइकिल बहुत मनसूब हो चुकी है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि पीको फैक्ट्री जो है मारूफ, उसमें एक तकरीब थी तो मुझे भी बुलाया गया और मैंने समझा कि मुझे एक फ़ख्र के साथ मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से बुलाया गया है। पता चला कि ज़ियाउल हक साहब ने ख़ुसूसी आर्डर किया है कि इन लोगों को साइकिल दिए जाएं और मुझे शर्मिंदगी भी हुई और फ़ख्र भी कि मुझे उस तकरीब में साइकिल तोहफे में दे दी गई। प्रोफेसर साहब, ज़ियाउल हक को साइकिल से वैसे बड़ी मोहब्बत थी, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ड्रामा करते थे क्योंकि वो भी 2-4 दिन साइकिल पर अपने ऑफिस गए हैं। जी ऐसे है। बड़े बड़े लोगों का ना जी साइकिल ना मनसूब है। मोजे तुंग साइकिल दे उत्ते ऑफिस जा रहे होंदे सीगे, एक बार साइकिल फड़ के टुरे जा रहे सीगे, एक बंदे ने कहा कि जनाब सानू भी थोड़ा जिहा टाइम दियो, कहंदे मेरे को टाइम हुंदा ते मैं साइकिल ते ना बैठ जांदा। मैंने एक दफा उनसे साइकिल मांग ली। अच्छा। वो कहने लगे इसको देखना भी नहीं, इसको हाथ भी नहीं लगाना। फिर मैंने उनकी साइकिल को देखा, हाँ, हाथ लगाया और दौड़ गया। डॉक्टर साहब मिजाजन बड़े संजीदा थे, लेकिन दोस्तों की हिस्से मजाक की तारीफ भी करते थे और तज़किरा भी। मुशफिक ख्वाजा बड़े अच्छे दोस्त थे डॉक्टर साहब के। उनकी वो एक बात का बड़ा जिक्र करते हैं कि एक दफ़ा मुशफिक साहब को फ़ोन आया एक खातून का, तो कहने लगी कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। तो मुशफिक ख्वाजा साहब ने कहा कि इस पर मेरी बीवी को ज़रा एतराज़ होगा। वो खातून कहने लगी कोई बात नहीं, मैं अपने शौहर के साथ आ जाती हूँ। तो मुशफिक ख्वाजा साहब कहने लगे इस पे मुझे एतराज़ होगा। औरत, जिन्स और जज्बात, जिसने डॉक्टर सलीम अख्तर की ये किताब पढ़ी है वो ये देखकर हैरान रह जाएगा कि कैसे एक मर्द लिखारी औरत के जज्बात को कागज पर उतारता है। असल में आयशा उन्होंने नफ्सियाती तनकीद पर PhD कर रखी थी। वो ना सिर्फ हर किसी की गहरी नफ्सियात जानते थे, बल्कि अगर आपने पढ़ी हो तो आपने देखा होगा कि वो फ्राइड, एडलर, योंग और तमाम नफ्सियात दानों का उन्होंने गहरा मुताला किया था। उन्होंने ना सिर्फ नफ्सियात पर बातें की बल्कि मारूफ लिखारियों की नफ्सियात बयान की और उनकी नफ्सियाती उलझनों का जिक्र तक किया है। बिल्कुल, गालिब जोश और इकबाल का नफ्सियाती मुताला डॉक्टर साहब के यहाँ बहुत मिलता है, और अगर आप गालिब शनास हैं तो आपने उनकी वो किताब जरूर पढ़ी होगी, शऊर और लाशऊर का शायर गालिब। जी बिल्कुल। और अंग्रेज शायरों और अदीबों की तहरीरों का तज्जिया करते हुए डॉक्टर साहब ने उनकी गहरी नफ्सियात में झांका है और उनकी ऐसी ऐसी नफ्सियाती उलझनों का जिक्र किया है, अकल दंग रह जाती है कि बखिया उधेड़ के रख दिए। ਇਹ ਟੀ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸਾਡੀ ਵੀ ਅਕਲ ਦੰਗ ਕਰੋਗੇ। मैं कभी अंग्रेज दा बखिया उधड़दा नहीं वेखिया। चिपक रहा है बदन पे लहू से पैराहन, हमारे जैब को अब हाजते रफू क्या है। वाह। डॉक्टर साहब इस शेर को गालिब की नरगिसियत कहते हैं। वो अपनी किताब शऊर और लाशऊर का शायर गालिब में डिफेंस मैकेनिज्म की 7 टेक्निक्स का अहाता करते हैं जो गालिब अपनाता है अपनी जिंदगी के हमलों के खिलाफ। वाह। डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब तो यही है ना कि कभी इंसान डट जाता है, कभी पसपा हो जाता है, कभी कोने खुतरे में लग जाता है और कभी राह फरार इख्तियार करता है। कभी खराब गले नाल लोकां दे कन्नां च आरियां चला रहा तो कोकब तेरा की का मैं इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू हो रही है यार। बीरा जी, आप में भी इंटेलेक्ट होनी चाहिए। असल में आयशा तनकीद डॉक्टर साहब की घुट्टी में थी। डॉक्टर साहब की एक छोटी सी किताब तनकीदी दबिस्तान, मेरा नहीं ख्याल कि वो तनकीदी किताब इतनी छपी और बिकी हो, जबकि बुनियादी तौर पर वो डॉक्टर साहब के नोट्स थे जो उन्होंने MA के तालिब इल्मों के लिए लिखे थे, लेकिन उसे पढ़कर तनकीदी दबिस्तान तमाम समझ में आ जाते हैं। और कैसे ना हो, मैंने पढ़ा है कि 9 साल की उम्र में डॉक्टर साहब की कृष्ण चंद्र से खतो किताबत होती थी। हाँ, कृष्ण चंद्र जवाब भी दिया करते थे। यही तो बात है कि अवाइल से उन्होंने अपनी जिंदगी की सिमत का तयन कर लिया था,
100 से ज़ायद कुतब और इनकी किताबें हिंदुस्तान और पाकिस्तान में यकसा मकबूल हैं। बल्कि ये कहना भी गलत नहीं होगा कि डॉक्टर सलीम अख्तर यहाँ की निस्बत भारत में ज्यादा मकबूल थे। एग्जैक्टली, बल्कि हिंदुस्तान में डॉक्टर सलीम अख्तर पर PhD हो चुकी है जी, क्योंकि वहाँ पर कोई कदर नहीं है, जिंदा इंसान पर भी PhD हो सकती है। हाँ जी, इत्थों तो जब दुनिया ते चले जाते हैं ना उन्होंने तो PhD हो रही होंगी है। हुण मेरा दिल करदा मैं कोकर ते भी PhD करा। हाय बाजी इहो जियां गाली करके ना मेरे को तुसा डॉक्टर साहब दी किताबां पढ़ने दा शौक पा दी थे, हुण मैं कित्थों शुरू करा? पहले सफे तो वीरिए। सोनी, आप अगर पढ़ना चाहती हैं तो आप पढ़ें कड़वे बादाम। कड़वे बादाम? वीरे ने किताब पढ़नी यार, रगड़ के अखां दी दवाई नहीं बनानी। ओ भाई, कड़वे बादाम उनके अफसानों का मजमुआ है और गालबन पहला मजमुआ अफसानों का। अच्छा, मिजाजन डॉक्टर साहब लिए दिए रहते थे और पब्लिक रिलेशनिंग के आदमी हरगिज नहीं थे, इसीलिए तो लिटरेरी फेस्टिवल्स पे और सेमिनार्स पे आमतौर पर नजर भी नहीं आते थे। ये कुछ 9-10 साल पहले जब उनकी वालदा की वफात हुई तो बड़े अफसरदा थे, कहने लगे अब सलीम कहकर मुझे कोई नहीं पुकारेगा। आयशा, डॉक्टर साहब सोशल तो थे लेकिन पब्लिक रिलेशनिंग वाकई उनमें बिल्कुल नहीं थी। सारी उम्र उन्होंने किसी सिले की तमन्ना, सताइश की परवाह किए बगैर काम किया। कोई सरकारी ओहदा, कोई फेवर, कोई मेडल, किसी चीज के लिए उन्होंने कोई जाती इनफरादी कोशिश नहीं की। जी बिल्कुल, बल्कि वो कहा करते थे कि मुझे कभी ऐसी ख्वाहिश नहीं हुई कि लोग मेरी तहरीरों पर तबसरा करें, मेरी किताबों पर मुकदमे लिखें, जबकि वो लोगों की किताबों पर लिख दिया करते थे, इजहार ख्याल भी कर दिया करते थे। शायद इसीलिए डॉक्टर सलीम अख्तर के लिए बड़े बड़े ताज़ियती इजलास और नशस्तें मुनक्किद ना हो, लेकिन हमारे दिलों में वो हमेशा जिंदा रहेंगे। बीरे डॉक्टर साहब ने माशाल्लाह 84 साल की जिंदगी पाई। हाँ। कभी उन्होंने किसी ना चपकलश नहीं हुई? रही उनकी चपकलश अदबी सतह पर थी डॉक्टर अनवर सदीद के साथ, लेकिन कभी भी उन्होंने कोई पर्सनल बयानबाजी नहीं की थी। आयशा जी वो असल में खुद पसंद नहीं थे, दूसरों की तारीफ करके खुश होते थे और अपने लिए दादो तहसीन के डोंगरे कभी नहीं जाते थे। आयशा ने दुरुस्त कहा, उनकी अदबी चपकलिश की बुनियाद असल में इंशाइया था। इंशाइये पर उनकी अनवर सदीद से वो बनी, बस फिर किताबें लिखी गईं। इंशाइया की बुनियाद असल में ये चपकलिश ही थी। इंशाइये च कादी चपकलिश बीरे? भी किसी ने 2 रोटियां बद खा ली होंगी, किसी ने 1.5 कट खा ली हो। ओ भाई, इंशाइया नहीं इंशाइया। इंशाइया की हुंदा जी? और बीरे, इंशाइया मजमून, मकाला, तर्ज़ो मज़ाह से अलग एक गैर रस्मी तहरीर होती है जिसमें लिखने वाला हल्के फुल्के अंदाज में किसी मुनफरद ज़ाविया निगाह से कोई बात करता है। ओह, कख समझ नहीं लगी। आपको कैसे समझ आ जाए? बड़े बड़े नाकदीन को समझ नहीं आई। जिस चीज़ को वज़ीर आगा इंशाइया कहते रहे डॉक्टर सलीम अख्तर नहीं मानते थे, और जिनको डॉक्टर सलीम अख्तर इंशाइया नगार कहते थे उनको वज़ीर आगा नहीं मानते थे। डॉक्टर सलीम अख्तर वैसे बुनियादी तौर पर इंशाइया के हक में नहीं थे, लेकिन कहते थे कि अगर इंशाइया कोई लिखने वाला है तो मशकूर हुसैन याद है। लेकिन डॉक्टर वज़ीर आगा कहते थे कि मशकूर हुसैन याद की तहरीरें तो तर्ज़ो मज़ाह वाली हैं, इंशाइया में तर्ज़ो मज़ाह नहीं होना चाहिए, कहका नहीं होना चाहिए, शगुफ्तगी होनी चाहिए, मुस्कुराहट हो तो ज़ेरे लब। इतना पेचीदा बना दिया था। इस पर डॉक्टर सलीम अख्तर सीख पा हो गए, और सारा झगड़ा इस बात पर था कि अनवर सदीद डॉक्टर वज़ीर आगा को इंशाइये का बाबा आदम बनाना चाहते थे। डॉक्टर सलीम अख्तर ने ठान ली कि मैं बाबा आदम का ताज डॉक्टर वज़ीर आगा के सर पर नहीं जाने दूंगा, और वो इसमें कामयाब रहे। वैसे प्रोफेसर साहब, इंशाइया तो पतरस बुखारी ने भी लिखे हैं। कौकब साहब, पतरस के मज़ामीन तर्ज़ो मज़ाह के हैं और इंशाइया तर्ज़ो मज़ाह से एक अलग चीज़ है। हुण मैं इंशाइया किथों पढ़ा? पहले सफे तो। नए साल का सूरज तुलू हो गया, बड़ा जश्न मनाया गया, बहुत हल्ला गुल्ला हुआ। तफरीही मकामात पर जहां पुलिस ने अवाम की हिफाजत की, वहां उन्हें तंग भी बहुत किया। जब कवानीन को शिकंजा बना लिया जाए तो तजादात जन्म लेते ही हैं। हम मौजूद हैं मॉडल थाने में, देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। नवा साल की चढ़े है, तुसी आजादियां लब लईयां। ओ सर होया की है साडे? ओए चुप कर। होया की है तन्नू मैं दसां, तुसी पुत्तर है थानेदार तो वाकिफ नहीं हैगे।
ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਖੱਲਾਂ ਟੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਖੱਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਟੰਗ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਐਡਾ ਜ਼ਾਲਮ ਥਾਣੇਦਾਰ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵਕਤ ਇੱਥੇ ਕੱਢਣ ਨੇ ਆ। ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਮੰਨੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨੇ ਜਰਾਬਾਂ ਨਾ ਬਣਾਤੀਆਂ। पर हमारा कसूर क्या है? कसूर जिथों मैं तानू फाड़ के ले आया ना, कसूर तानू आके थानेदार ही दसेगा। ओहो भाई उन्होंने किया क्या है? कीता की है? तुसी उत्थे हुंदे तुसी पता की करना सी? क्या? हाय मैं मर गई। हाँ जी मैं मुंह च तेल पा के अग कढ़ रहा सी। अग तेरे मुंह च नहीं तेरे दिल च लगी हुई सी। वो तो मैं ठंडे पानी दी बाल्टी ना पांदा इन्हें नाल दे दरख्त भी साड़ देने सी। किवें अग लग गई? साडा ते बालन ही गिला है। हां आ लेंदे ओ साहब नु अज तुहाडीआं टंडा करके कटेगा। लोना गले लगा लोना मुझे बुझा दो ना कौन लोग ने नवा साल मना रहे सन। नवा साल जी किने किने मनाया? सानू कच्ची नींदरे किने जगाया? तुसी मना रहे सो नवा साल बिंदी चमके पसीने नाल ते भिज के कुंडला वाल। कौन कौन सी? साहब जी तुसी क्लब चो ठाणे पहुंच गए हो ज़हन बदल लो। ओ तू ते कहना सा ऐसे चो खून खा रहा है ये ते मजेदार है। कौन है? ए ते ए कुड़ी रात दा टाइम पार्क दी तन्हाई। क्या? ना ही पूछोगे ना ही पूछो। दस मैं वापस अपनी पोजीशन ते भी आना है। रात दी खामोशी ते चन्न दी चाननी। ओहो मैं तो इनसे ये कह रही थी कि पूरे चांद की रात जब रोशनी दरख्तों के पत्तों से छिनकर मेरे गेसुओं में बिखरी हो तो आप मेरे करीब आकर उतो है नामा कूल आके कहते जी निकाह नामा चेक करो। फिटे मुतेरा ओ तेनू शर्म आनी चाहिए कि मैनू कह रहे मुंडा मुंडा सर कितों अजे सिर्फ साडी मंगनी हुई है ते सबूत मांग रहे हैं। सही कह रहे ने। हैप्पी न्यू ईयर ते सबूत कौन मांगदा है? बगैर छत तो गड्डी मंगनी चाहिए है जी। दोशीजा बाहर निकल के कवे रात बाकी बात बाकी होना है जो सालमा कमीने जलीला जुल्म दी इन्नी इंतहा मैनू भी फड़। मेरा मतलब है कि इन्हों भी फड़ लिए। ओ वाहियात लोगों, क्या कानून के नाम पर कानून का तमाशा बना रखा है? मासूम बच्चों को खुशी के मौके पर पकड़ लाए और शर्म नहीं आती? प्रोफेसर साहब साले 9 का आगाज है, ये खुशी है, ये तो बेहूदगी है। हमारे असलाफ की अकदार का जनाजा निकाल दिया इन्होंने। कौन से असलाफ का जनाजा निकाल दिया? इस परेशानी के दौर में अगर खुशी के लम्हात मुयस्सर आ ही गए हैं, तुम्हारी खामखा जान निकल रही है। प्रोफेसर साहब आप इस बेहूदगी को, इस बेशर्मी को और इस लच्चरपन को खुशी का नाम दे रहे हैं। और किसी अच्छी जगह पर घूम फिर लिया, गाना सुन लिया, एक दूसरे को समझने की कोशिश की, इसमें लचरपन कहां से आ गया? कौकब साहब गलतियों का मुहासबा करने के लिए नए साल का इंतजार क्यों? वो तो कभी भी किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। फिर मुझे ये बताएं कि आप भंगड़ा डालने को, लेवा डांस करने को, लुड्डी डालने को, सम्मी करने को बुरा समझते हैं? हरगिज नहीं। वो इलाकाई सतह पर खुशी का इजहार है और ये मगरिब की एक रिवायत है। मगरिब ही की तो मजम्मत करनी है जिसने सकाफत का बेड़ा गर्क करके रख दिया है, और ये तहजीब अपने खंजर से खुदकुशी करेगी। अच्छा वो तहजीब तो खुदकुशी करेगी, आपने क्यों मगरबी तहजीब का रंग चढ़ाया है खुद पर? इस तहजीब नु हासिल करने वास्ते फजर टाइम घरों निकलदा, शाम नु पा के मगरबी बन के इथे आ जांदा। इथे बैठा गल्ला करी जा रहे हैं। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਸ਼ੌਕ 'ਚ ਦਾਦੇ ਦਾ ਘਰ ਵਕਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਕੁੜੀਏ ਰਾਤ ਦਾ ਸਨਾਟਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਬੈਠੇ ਸੋ, फिर की हुआ? फिर आसमान पर फुलझड़ियां तड़तड़ाई, वाह, और दिल ने बगावत का इशारा दे दिया। खुशी, सुपुर्दगी, खुमार और बहके हुए जज्बात
जब दिल से रहा ना गया तो पता है मैंने इनसे क्या कहा? क्या? तेरा पहलू तेरे दिल की तरह आबाद रहे, तुझ पे गुजरे ना कयामत शब तन्हाई की। ਉਤੋਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਟੁੱਟੀ ਮੰਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਵਾਲਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਧੂਆਂ ਕੀਤਾ ਜੇ ਚਰਸ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਧੂਆਂ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਜਿੰਨ ਕੱਢਣ ਡਿਆ ਸੈਂ। इनसे पूछे ना हमें क्यों पकड़ा है, हम तो सिर्फ फायरवर्क्स कर रहे थे। हाय दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। मैं सोटा मार के ना ते बालन भी तोड़ देना सारा। वे सिर भार टुरन वालिया तेनू हया नहीं आंदी? एडी अच्छी गुफ्तगू दे विच ते इंज ही होना जिवें फुल्ला भरी चंगेर च किसी ने कूड़ा सुੱਟਤਾ। ਚੱਲਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੈਂ 2 ਸਟੈਪ ਲਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਐਡੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਮੇਰੇ ਆ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਫੜੇ ਨੇ ਬਾਹਰ। ਹਾਏ ਐਡੀਆਂ ਮਖਲੂਤੀ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੇ ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। लवली मर्द बन। मैं नहीं मर्द बनना, मर्द बड़े जालिम होंदे ने। हाँ? देखिए आयशा जी, देखिए क्या खराफात हो रही हैं। है तो वाकई खराफात, आप सही कह रहे हैं। चलती गाड़ी से उतरते हैं, नाचते गाते हैं, अपना हाथ पैर तुड़वा लेते हैं, बिस्तर से जा लगते हैं। पता नहीं आपने खराफात का लफ्ज कहाँ से सुन रखा है। ओ मियाँ, हर तरफ परेशानियां मुंह खोले खड़ी हैं। साल बाद अगर चंद लम्हात को सेलिब्रेट कर लिया है तो आपको ये हस्पताल और ये पता नहीं क्या कुछ याद आना शुरू हो गया। मुझे खुशी मनाने से कोई एतराज नहीं है प्रोफेसर साहब, लेकिन ये जो ट्रेंड है ना, जिससे अपनी जान भी खतरे में डाली जाए और दूसरों की भी, ये ठीक नहीं। ओ बाजी चलदी गड्डी 'ਚ उतर के नचना ते खराफात हो गया। अपनी मंगेतर दा पार्क 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਖਰਾਫਾਤ ਏ। ਓਏ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਤਲ ਪੈਣਾ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਉੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਜੇ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ। क्या? ਕੇਸ ਅਸਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਐਵੇਂ ਖਾਨਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਏ। ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਪਰਚਾ। ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਰਨੀ ਏ, ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਛੱਤ ਪਾੜ ਲਾਂ। ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜੋ ਲੈ ਤੇ 2 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਪਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿ 2 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਜਾ। लवली मर्द बनो। ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਮਰਦ ਬਣ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਮਰਦੇ ਬਿਮਾਰ। ਓਏ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਓਏ, ਓ ਛੱਡ ਦੇ ਭਾਈ। ਓਏ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਓਏ, ਛੱਡ ਤੈਨੂੰ। हाय ऐसा कीता क्या है? हाय ऐसा वसेब विच बत्तियां ने खड़ा है, गुब्बारे ने खड़ा है, फुहारे ने खड़ा है, मुआ पकड़ आए सब। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਅੱਬ ਪਾਤਾ। ओहो ਹਾਏ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਫੁਹਾਰੇ ਵਗਦੇ ਪਨ, ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ ਬੱਤੀਆਂ ਬਲਦੀਆਂ ਪਨ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਝੁੰਮਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਛਾ ਵੀ ਕਾਇ ਨਹੀਂ ਥਈ ਤਨਾ ਬੱਤੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਟੀਵਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਬਾਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਾ ਕੇ ਦੇਣਾ 2 ਦਰਖਤ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਤੀਆਂ ਲਾ ਲਈਆਂ ਉੱਥੇ। भाई बड़े बदतमीज हो तुम। ਉਹ ਬਾਜੀ ਬੱਤੀਆਂ ਵੇਖੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਇਹਨੇ ਸੀਟੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਨ ਪਾੜਦਾ। क्या? ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਜੀ ਸਾਰੇ ਸੀਟੀਆਂ ਮਰਨ ਦੇ ਵਦਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੀਟੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋ ਪਕੜ ਕੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਹੈ। ਸੁਣੀ ਜੇ ਸੀਟੀ ਉੱਥੇ ਸੀਟੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਸੀਟੀ ਤੇ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਸੀਟੀ ਮਾਰੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਹੁਣ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਵਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਬਚਾਵਾਂ। पुलिस वाले वास्ते ना पेंट ज्यादा जरूरी है। हाय न काजल न गाजा न बिंदिया न सुर्खी, ये किनू फड़ लिया है? ਓਏ ਬੜੀ ਜ਼ਾਲਮ ਜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਇਹ ਸਟੈਚੂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਨ ਡਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਰੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਤੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਬੈਠਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਮਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭੈਣੀ ਨਾਲ ਖੜਾ ਨਾਲ ਆਨੇ ਕੱਢ ਖੱਡੇ ਦਾ ਪੇ ਚਾਗ ਦੀ ਮੀ ਜੁੱਤੀ ਉਹ ਲਿੱਤਰ ਪੋਲਾ ਕਿਤੇ ਯਾਦ ਕਰੇ ਸੀ ਹੁਣ ਵਾਲ ਨਾ ਦੇਖ ਸੀ ਕहीं को। ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਖਲੋਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਘਟਾ ਹੁਣ। ਬਾਜੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫੁਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, हाँ? ਉੱਥੇ ਕੂਲਰ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਰੰਗ ਬਰੰਗਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ। हाय लगती तो नहीं रंग बिरंगा पानी पीने वाली। ਵੇ ਫਟੇ ਮੂੰਹ, ਵੇ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਬਣਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਅਮੀ। ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁੱਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਦੜਾ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਆ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਓਏ। ਕਦੋਂ? हाँ? मर्द बन। ਇਹਨੂੰ ਸਾੜੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇ, ਹੀਰੋਇਨ ਬਣ ਕੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇ। असा परदेसी लोग सर, इजाजत दे दो, जान छड़ दो साडी। ਓਏ ਪਰਦੇਸੀ ਕਿਹੜੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਇੱਕ ਪੀਸ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੈਗ ਪੀਸ। अच्छा 42 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਗਏ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। उसने क्या कहा, क्या खाया, कहाँ गया, कहाँ से आया, तुम्हें इससे क्या? ਉਹ 42 ਨਾਨ ਖਾ ਗਏ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੀਸ ਉਂਝ ਦੇ ਉਂਝ ਪਏ ਨਾਨ ਮੋਗੇ ਉਹਦੇ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਪੱਲਿਓ ਖਾਦੇ ਸੇ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਂਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। लवली मर्द बन। ਐ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮਰਦ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋ ਟਾਂਗਾ ਚਲਵਾਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਤੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੱਚਦੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ जी। ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਗਾਣਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨੇ। ਅੱਛਾ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਚ ਗਾਣਾ? ਹਾਂ
केड़ा? तेरा रस्सा देख रहा हूँ, सिगड़ी पे दिल सेक रहा हूँ, आ परदेसी मोरे बलमा, ओ बलमा टोणो नोणो नोणो, 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 ओ बलमा टोणो नोणो नोणो। आज के शो का वक्त खत्म हुआ, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद इतने हूँ असीं मचलके भरने के पक्कियां च कापियां मारिए उठ के।